Hmm. So we were discussing the topic, which was types of choppers. So now question arises because you were not present in the last class. I hope अभिषेक था बट अभिषेक बीच में चला गया था. तो टाइप्स ऑफ चॉपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ. चॉपर क्या है? चॉपर इज अ डिवाइस, switching device, whose symbol is like this. This is a symbol of a chopper. ठीक है. And chopper can be any device, any switching device. Like क्या क्या हो सकता है? It can be IGBT, it can be SCR, it can be MOSFET, and it can be BJT. ठीक है. Either of these four devices can be a chopper, and chopper has got a symbol like this, a switch enclosed with inside a box, and it is being written with the help of symbol CH. CH stands for chopper. ठीक है. So last class we had discussed the topic like what are the control strategies to control chopper. Okay, so there was one important term was there. Let me discuss that. उसके बाद हम लोग continue करेंगे. ठीक है. One of the important term related with chopper is del. Del stands for duty cycle. You can write down. Del stands for duty cycle. Duty cycle of a chopper. And what is the formula? Formula is T on by T. Now what is T on and T? Say this is the output waveform of a chopper. So now what is the function of a chopper? Chopper basically converts DC, fixed DC to variable DC. It converts fixed DC to variable DC. Okay, so uh, you are giving a fixed DC, and on the output side you are getting a variable DC. So variable DC will look like this, na? Fixed DC symbol is like this, and variable DC will look like this only. So right now the waveform which we are discussing is a variable DC. That is why the name of the switching device is a chopper. Okay. Now what is T on? T on is for the period when you are getting the output voltage. Okay. That is T on. And what is T off? During the period when the chopper is off, that period, because here output voltage is zero, na, you can see it is zero. Here also it is zero. This is turn off time. T off means turn off time. T on means on time. And the sum of what is the time period of this chopper? Time period of this chopper is turn on time plus turn off time. Sum of on time and off time is called as the time period. Time period symbol is T. This is a symbol. This is a symbol of a time period, right? T. So what is duty ratio? Sorry, duty cycle. So duty cycle is nothing but a ratio of T on is to T. This T on time divided by total T. T on time divided by total T, the ratio is known as duty cycle. Okay. So this is one of the most important term related with duty cycle. So let us start the topic. Shall I rub it? रब करूं? हेलो. ठीक है. लिखते जाना साइमल्टेनियसली कॉपी में. ठीक है.
Okay, so let us start the topic, which is types of chopper. So it is of five types. Total five types are there. Okay, so one by one we'll be discussing. In my last class or last video, I have already discussed first two type, but I think you won't be able to understand, huh? So that is why I will be repeating for those two types first, then I will be moving ahead. Okay, so first type I'm going to discuss. There are five types: type A, B, C, D, and E. Okay, so let us begin with first type, that is name is first quadrant or type A chopper. So the name of first type of chopper is type A chopper or first quadrant chopper, right? This is the name of first type. Got it? And the otherwise it is also known as step down chopper. So it has got three names: first quadrant chopper, type A chopper, or step down type A chopper or first quadrant chopper. Three names are there. So now first step down chopper, like in our transformer, transformer can be a step down one or a step up one. In step down one, output voltage is smaller than the input voltage. Here also the same thing, the output voltage obtained will be smaller in value than in respect to the input value. Input will be DC and output will be DC. Okay, so input is fixed DC, output is a variable DC. That's what the role of chopper is. Okay, so first quadrant or type A or step down chopper. Let us discuss the waveform, sorry, circuit diagram. Okay, circuit diagram. Okay, now draw the diagram. So diagram is over, I hope. Hello, diagram over. Okay, okay. So let me so output voltage. Huh? Input voltage is Vs, that is fixed DC, and output voltage we are getting across the load. Load is across the load. The output voltage obtained is also a DC, but this is a variable one. So this is fixed, and this one is variable one. So understood? Both input and output side both are DC, but the difference is input is fixed and output is variable DC voltage. Okay, and this is a chopper. Symbol is CH. So in place of chopper, we can use either of the four switching devices which we have discussed. It can be BJT, IGBT, MOSFET, or a SCR. Okay. So now let us discuss the working of this circuit.
So for some time ch or the chopper will be on, and for another some time, some instant, you can say chopper will be turned off. So it will be on and off, it will be turning on and turning off. So let us discuss when the chopper is on. Let us discuss for the moment when the chopper is on. So when it is on, what will be the circuit? I'm just changing some part of the circuit, huh? FD stands for freewheeling diode, huh? FD stands for freewheeling diode. So what will be the circuit if the chopper is remaining on? The situation, chopper is on. So this will be the circuit. So how the current will be flowing? Current will be flowing like this, right? So how the current is flowing through the load? It is flowing in the downward direction. Acha, now let me tell you the pink colored arrow direction which I am showing is for I naught. I naught stands for load current. So if the load current is matching this direction, this pink direction, I am taking it as a reference. So if the load current direction will match with this pink direction, then will be saying that I naught is positive. If it is not matching, then we'll be saying it as negative. Okay, so in this case it is matching now. So ch is on, chopper is on. So chopper is on means it is now connecting the source with the load na. So this will be the active circuit. FD was connected in between, but FD is now reverse bias, so FD has got no role to play. Okay, so in this case Vs is connected with the load with the help of chopper. Now we can apply KVL in the circuit. Apply KVL in the circuit to find out V naught. Okay, so Vs is negative to positive, Vs is positive. Then across CH, when the CH is turned on, chopper is turned on, very small or very minimum voltage drop will occur. That is negligible. So we are neglecting the voltage drop across chopper, right? Now next is the voltage drop across the load. Across load we are moving in the downward direction, na? So positive to negative. Positive to negative means negative, right? So finally we are getting, if you just solve it out, you will get V naught is equal to, sorry, V naught is equal to Vs, isn't it? We'll get it like this now on solving. V naught is equal to Vs. V naught is equal to Vs means V naught is positive. Okay, and what about your I naught in this case? See this yellow line, yellow arrow direction of present I naught. This shows I naught direction. So present I naught, is it matching with the pink direction of I naught, which is our reference? Is it matching? Hello, is it matching? It is matching. So if it is matching, we will be saying that I naught is positive. That is why I'm writing I naught is positive, right? So this is for the case V naught is equal to Vs, V naught is equal to Vs, and I naught is positive. So this is for the case when your CH is turned on, right? Okay, so now let us take the another instant when CH is off. CH will be frequently turning on and off. Okay, it should have high, it will have very high switching frequency, on off like this. So this we had discussed, V naught is becoming Vs and I naught is becoming positive. This is for the instant when the chopper is on. Now let us discuss for the case when chopper is off. Okay, when chopper is off. Okay, when chopper is off. When chopper is off, what will be the circuit? Chopper is off means whether source will be connected in our circuit. Source will be connected. Tell me. If the chopper is off, no, it won't be. It won't be. So what will be the circuit? Circuit will now get modified. Huh? So you draw a fresh diagram so that you can understand. Make the diagram simultaneously.
So your circuit will be like this. Now FD is coming into picture. FD stands for freewheeling diode. This is FD. FD full form all of you know na, it is free wheeling, wheeling, wheeling diode. Freewheeling diode. The name of diode is freewheeling diode, but the it's physically same as a diode, simple diode. Okay. So so now if this will be the case, actually in this case na, inside the load we have got a inductor. So inductor will store the energy during the moment when the chopper is on, and during this time when the chopper is off, when the source is now out of the circuit, so during this time the load will act as a source. Okay, and it will try to flow the try to uh, allow the flow of current through the circuit. Now see, the current will be flowing in this direction through the load, and freewheeling diode is now forward biased. Okay. So now tell me what will be the value of V naught in this case? V naught का value क्या होगा? V naught. Load is short circuited with the help of freewheeling diode. हाँ संदीप कुछ बोल रहे हो? हाँ जीरो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया ना. V naught is completely zero, शॉर्ट सर्किट हो गया. FD के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी वेरी मिनिमम, इसलिए हम लोग जीरो पकड़ रहे हैं. ठीक है. So when the CH is off, V naught is becoming zero because it is short circuit. And what about your I naught? I naught ऐसे flow हो रहा है देखो इस केस में. तो ये क्या पिंक के साथ मैच हो रहा है? देखो whether the yellow line is matching. हाँ. Yes, it is matching. So if it is matching, क्योंकि pink जो है वो मेरा reference है. So the present yellow line, yellow or arrow is matching with the pink one, which is pink one is our reference. So we can say I naught is positive in this case. Understood? V naught is zero because it is short circuited. Load is short circuited with the help of freewheeling diode. So V naught is zero and I naught is positive. So got my point? So in this case, chopper role is that it is a high frequency device. It will be turning on and off frequently. Okay, so when it will be on, V naught will be equal to Vs and I naught will be positive. And when it is off, V naught is zero. V naught is zero and I naught will be positive, right? So I'm just rubbing it out. हो गया लिखना सबका? Diagram हो गया? Shall I rub it? Okay. So now the final conclusion. नेक्स्ट वीक तक, सैटरडे तक पूरा खत्म. हाँ चॉपर के बाद है. अच्छा, व्हाट अबाउट द गर्ल्स? हाँ साइक्लो कन्वर्टर के बाद है एप्लीकेशन. मेन चैप्टर्स खत्म हो गया, अभी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. अच्छा, नाउ द फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन जो हम लोग नंबर 1 डिस्कस किए व्हेन द चॉपर इज ऑन, एंड नंबर 2 डिस्कस किए व्हेन द चॉपर इज ऑफ. इन बोथ द केसेस वन थिंग इज ऑफ श्योर कि वी नॉट एंड आई नॉट, वी नॉट और आई नॉट दोनों केसेस में पॉजिटिव है. एक बार देखो फिर से. पहले वाला केस व्हेन द सी एच इज ऑन, वी नॉट इज वी एस मतलब पॉजिटिव है, आई नॉट भी पॉजिटिव है, सेम एरो डायरेक्शन. ओके. एंड सेकंड केस जब हम लोग डिस्कस किए सी एच इज ऑफ, वी नॉट इज जीरो. जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो को कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता है. जीरो मीन्स पॉजिटिव. एंड आई नॉट इस केस में भी पॉजिटिव था. तो दैट मीन्स फाइनल थिंग इज दैट बोथ वी नॉट एंड आई नॉट बोथ आर पॉजिटिव. अच्छा, इसको अगर हम लोग वैल्यूज को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो this x axis side, if I am taking v naught, and y axis side if I am taking I naught, so we will be getting a area like this. ठीक है, which is lying in which quadrant? Which is lying in first quadrant only. ठीक है. this is the reason this is the reason कि this chopper is otherwise known as first quadrant chopper. This is the reason.
because in this case, whether your ch is on means chopper is on or off, in both the cases we will be having both I naught and V naught lying in the positive axis. Positive axis में जा रहा है ना दोनों, first quadrant area. That is why this chopper is otherwise known as first quadrant chopper. ठीक है? So I think it is clear to all of you. Type A chopper or first, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसको स्टेप डाउन चॉपर क्यों कहते हैं? दैट पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग. ओके, सो लेट मी क्लियर दैट पार्ट. ओके, रब कर रही हूँ. शैल आई रब? ओके, now why it is called a step down chopper? Step down chopper, if you look through the notes you will find there is an equation. V naught is equal to del Vs. This is an equation related with step down chopper. This you can refer to the notes, you will get a derivation, small derivation is there. Okay, so here del stands for duty ratio, which we have discussed in the very beginning, which is the ratio of T on is to T. Ratio of on time to total time period is known as the duty cycle. So what is this range? What is the range of this duty cycle? It is ranging from 0 to 1. This is the range. 0 means minimum value and 1 means maximum value. So 0 means the chopper is not turning on, it is remaining off. This is for 0 case, del is equal to 0. Okay, and del is equal to 1 means it is remaining on, कभी off नहीं हो रहा है. ठीक है? Understood? चॉपर कभी भी ऑफ नहीं होगा, तब हम लोग का डेल 0 होगा. ठीक है? एंड चॉपर हमेशा ऑन रहेगा तो डेल इज इक्वल टू 1 होगा. आई विल टेल यू हाउ यू आर गेटिंग. ओके, हमेशा हमेशा ऑन. हाँ, एक मिनट. हमेशा ऑन रहेगा मतलब कम बैक टू द ये फॉर्मूला टी ऑन बाई टी. हमेशा ऑन रहेगा मतलब टी 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 विल बी इक्वल टू टी ऑन ना. सो टी ऑन बाई टी ऑन विल कैंसल आउट, विल गिव अस डेल इज इक्वल टू 1, राइट? हमेशा जब ऑन रहेगा. और हमेशा जब ऑफ रहेगा, हमेशा जब ऑफ रहेगा मतलब यहाँ पे टी ऑन का वैल्यू है ही नहीं ना. टी ऑन इज 0. ठीक है? टी ऑन इज 0. T on is 0 means 0 by T. So we are getting del is equal to 0. So understood? So this is how we are getting a range of del. Minimum range is 0 and maximum is 1. 0 कब होगा? जो ऑफ ही रहेगा चॉपर, कभी ऑन ही नहीं होगा. एंड 1 कब होगा? जो हमेशा ऑन रहेगा, कभी भी ऑफ नहीं होगा. राइट? सो लेट अस understood ना all of you? Del range 0 to 1. Hello. Okay, now let us take the ranges 0 to 1. Let us put in our equation. इसको equation 1 कर देती हूँ. इस equation में डालते हैं. हाँ, equation 1. So let us first put del is equal to 0 in our equation number 1. What will happen? V naught is equal to, when you are putting del is equal to 0 in equation number 1, V naught will be equal to 0. ठीक है? And when we are putting del is equal to 1, when we are putting del is equal to 1, V naught is becoming equal to Vs. ठीक है? तो इस रेंज के लिए, फाइनली इस रेंज के लिए what we are getting is V naught is ranging, for this range it is ranging, for the 0 to 1 range it is ranging from 0 to Vs. Am I clear to all of you? It is ranging from 0 to Vs for this range of del 0 to 1. So 0 to Vs matlab we are giving supply as Vs na, DC fixed DC voltage Vs, and on the output side we are getting 0 to Vs. मतलब 0 से Vs से ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. Vs मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा, right? Clear? This is the reason
This is the reason it is called a step down chopper. This type is known as step down chopper. जो मेरा V naught होगा, that will be less than is equal to Vs, which is clear from this. Clear? V naught output voltage is always, it can be equal to Vs, but it can't be greater than Vs, right? Because it is ranging from 0 to Vs. Vs होगा या फिर Vs से कम होगा. That is the reason it is known as, otherwise type A first quadrant chopper is otherwise known as step down chopper. Step down कर रहा है. ठीक है? हाँ, नहीं, V नॉट इसमें कभी भी ज्यादा नहीं होगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेप डाउन चॉपर. हमेशा Vs या उससे कम, हाँ उससे कम, ये उसका टाइप है, इसमें कभी भी ज्यादा नहीं होगा. ज्यादा वाला दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है? इसमें हमेशा Vs या फिर उससे कम सप्लाई डीसी वोल्टेज. फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग डीसी वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट डीसी फिक्स्ड you are giving. So on the output side of this type A chopper you will be getting 200, either 200 or less than 200 वोल्ट डीसी. उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 200 से ज्यादा नहीं मिलेगा कभी भी, इसलिए इसको स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं. इज इट क्लियर? मैं रब कर रही हूँ. ठीक है? ओके, नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड टाइप. ठीक है? सेकेंड टाइप नोट कर लो. टाइप बी, ए था ना, अभी बी होगा. ठीक है? टाइप बी और सेकेंड क्वाड्रेंट, टाइप बी और सेकेंड टाइप बी चॉपर और सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर और इट इज नोन एज स्टेप अप चॉपर. टाइप बी चॉपर, टाइप बी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट वाला ए था तो ये बी होगा. ठीक है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड है. सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का रीजन जब हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर आएगा. और स्टेप अप चॉपर क्योंकि यहाँ पे वी नॉट विल बी ग्रेटर देन योर वी एस, step up karega. Okay, that is why it will be known as step up chopper. So we'll try to understand. First we'll have to discuss the way, circuit diagram. Okay, rub kar rahe ho for circuit diagram. Okay, now draw the diagram. So this is a circuit diagram. Load in this case consists of an inductor and a DC source E. E means uh, E means here a DC source. DC source plus L connected in series. This combination is acting as a source over here. Okay, and I naught reference direction. I naught means load current. Reference direction is in this direction, downward. Okay. So if it is matching with this reference direction, we'll be saying I naught is positive. But if it is not matching, then we'll be saying it is negative. Okay. So what is the difference of this diagram with the previous one? कैसे याद रखोगे? उस केस में अगर डायग्राम सामने है, एक बार देखो, कंपेयर करो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? टेल मी. कंपेयर दिस डायग्राम विद द प्रीवियस वन, टाइप ए चॉपर.
हाँ, एल और ई उसमें भी एल होगा, क्योंकि लोड में एल नहीं होगा तो सेकंड वाला केस में नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक एल विल एक्ट एज अ सोर्स, ठीक है। और दूसरा, हाँ डायोड, हाँ राइट, दिस इज द मेन पॉइंट। चॉपर और डायोड का जो पोजीशन है, फ्री व्हीलिंग डायोड इज आल्सो अ डायोड, हाँ। तो चॉपर और डायोड का पोजीशन इंटरचेंज हो गया इन दिस मैनर। यू कैन रिमेम्बर, आई डू रिमेम्बर इन दिस मैनर, हाँ। चॉपर और डायोड का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। और उस केस में भी इंडक्टर रहा होगा, वो मैंने दिखाया नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि अगर इंडक्टर नहीं होगा तो सेकंड केस जबकि चॉपर ऑफ हो रहा है तो हु विल प्रोवाइड द एनर्जी, who will act as a source, so उस केस में भी तुम्हारा इंडक्टर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अभी स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे भी फॉर पर्टिकुलर instant you can say chopper will be on, and for other instant chopper will be off. It will be turning on and off frequently, okay. So let us first discuss a case when the chopper is on, जैसे पहले वाला डिस्कस किया था वैसे ही सेम प्रोसेस। when the chopper is on, so if the chopper is on, so when the chopper is on, what will be the circuit? You have to modify your circuit, हाँ। मैं रब कर रही हूँ सर्किट में, you have to make a fresh diagram। when the chopper is on, this is for the instant when the chopper is on, ठीक है, chopper on है, chopper chopper is now connected, it's a switching device, it's connected. So now who will act as a source over here? Here e dc source will act as a source, and also if we assume this whole process is a continuous process, so inductor will store some energy uh, mm, in its previous case when the chopper will be off, okay। So inductor के पास भी कुछ energy है, और e is also a source, so this will provide the current, load current to flow। तो load current कैसे flow हो रहा है इस केस में, ऐसे flow होगा, ठीक है, because e is the main source over here, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन देखो। तो नाउ सी दिस डायरेक्शन ऑफ लोड करंट, प्रेजेंट लोड करंट डायरेक्शन, yellow arrow, yellow arrow direction, and v not I not direction reference, whether are they matching with each other? नहीं। तो अभी, हाँ, तो अभी हम लोग आई नॉट क्या लिखेंगे, आई नॉट इज नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस के साथ मैच नहीं हो रहा है, दिस इज द रीजन, आई नॉट इज नेगेटिव। और व्हाट अबाउट योर वी नॉट, वी नॉट क्या होगा इस केस में, वी नॉट इज जीरो, वी नॉट टोटल के अक्रॉस है, एल और ई के अक्रॉस, एल ई को शॉर्ट कर दे रहा है चॉपर, चॉपर के अक्रॉस जो स्विचिंग डिवाइस होगा उसके अक्रॉस मिनिमम वोल्टेज है, सो विल से वी नॉट इज जीरो इन दिस केस, वी नॉट इज जीरो एंड आई नॉट इज नेगेटिव, क्लियर, क्लियर ना, ओके। सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग सी एच एस ऑफ, एक बार ऑन होगा फिर ऑफ होगा, ठीक है। तो ऑफ वाला कंडीशन डिस्कस करेंगे। So write down when chopper is off. Chopper is off means diagram से ये हट जाएगा. You have to make a fresh diagram, हाँ, another diagram. Diode will come into the picture. ठीक है, ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है। तो इस केस में जब चॉपर इज गेटिंग ऑफ, यू मे आस्क अ क्वेश्चन कि डायोड कैसे फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया व्हेन द चॉपर इज ऑफ। डायोड कैसे फॉरवर्ड बाइज हो रहा है, डायोड इसीलिए फॉरवर्ड बाइज्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वी नॉट, वी नॉट जो कि क्या है इन दिस केस, एल डी आई जीरो बाई नॉट बाई डी ई डी टी प्लस ई, ये जो टोटल है वी नॉट,
वी नॉट जो है वी एस से ग्रेटर है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वी नॉट का वैल्यू जो है वी एस से ग्रेटर है, तभी ये डायोड डी टू जो है वो फॉरवर्ड बेस्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये एक अज्यूमशन है, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन से कि लोड इज एक्टिंग एज अ सोर्स एंड सोर्स इज एक्टिंग एज अ लोड। लोड जो है वो सोर्स को पावर दे रहा है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है इस केस में, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लोड से सोर्स में जा रहा है, ओके। तो ये कब पॉसिबल है, लोड से सोर्स करंट कब जाता है, जब तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन योर इनपुट वोल्टेज। दिस इज द रीजन ओनली योर डायोड इज गेटिंग फॉरवर्ड बेस्ड। अगर तुम्हारा इस केस में जस्ट अज्यूम फॉर एन इंस्टेंट कि वी नॉट इज स्मॉलर देन वी एस, क्या डी टू फॉरवर्ड बेस्ड होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस केस में वी नॉट इज ग्रेटर देन वी एस, इसीलिए डायोड डी जो है वो फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है, ओके। सो इन दिस केस आई नॉट का डायरेक्शन रेफरेंस के साथ मैच हो रहा है या अपोजिट है, आई नॉट का डायरेक्शन, present direction, whether it is matching with the reference, opposite, so we will be saying I naught is negative. And what about your V naught, V naught के लिए हम लोग को KVL लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा रब कर रही हूँ, आई नीड स्पेस। यहाँ पे KVL लगाओ तो D2 वोल्टेज D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मिनिमम है, ओके। सो यूज KVL, यूज KVL इन दिस केस, ओके। सो V नॉट का पोलैरिटी मैंने दिया नहीं था, भूल गई हूँ, इसको दे देती हूँ पोलैरिटी, ठीक है। तो इस केस में अगर KVL डालते हो, सो V नॉट क्या आएगा, V नॉट क्या आएगा, VS आ रहा है ना, V नॉट इज इक्वल टू VS आ रहा है ना, V नॉट इज इक्वल टू VS, ठीक है। ओके, नाउ द फाइनल कंक्लूजन। तो एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, सर्किट ऐसे ऐसे चेंज होते जाएगा, ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस द फाइनल कंक्लूजन। I naught negative, V naught is equal to VS. Okay, now final conclusion, मैं रब कर रही हूँ डायग्राम। सो फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है, दोनों केसेस में आई नॉट नेगेटिव रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है, क्या हो रहा है दोनों कंडीशंस में, वन सी एच इज ऑन एंड सी एच इज ऑफ, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, हेलो, नेगेटिव, दोनों केसेस में नेगेटिव। तो आई नॉट दोनों केसेस में नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ओके। एंड व्हाट अबाउट योर वी नॉट, वी नॉट क्या हो रहा है, एक पहले केस में जीरो था और सेकेंड केस में वी एस है, मतलब पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। वी नॉट क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। So your V naught is remaining. This is the final conclusion based on when the situation when CH is on or CH is off. Okay, this is the final conclusion. So V naught is positive and I naught is negative. V naught is positive and I naught is negative मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये देखो आई नॉट इस तरफ नेगेटिव होता है ना, एंड ये वी नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी ड्रॉइंग, जो भी वैल्यूज हम लोग लेंगे हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, राइट। ग्रीन वाला लाइंस को अगर फॉलो करते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि आई नॉट हमेशा दोनों केसेस में रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन सी एच इज ऑन और ऑफ हमेशा नेगेटिव होगा, एंड वी नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव, या तो फिर जीरो होगा, जीरो मतलब यहाँ, ठीक है, या तो फिर वी एस होगा, ठीक है। सो इन दिस केस वी विल से कि इट इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द रीजन इसको हम लोग कहते हैं टाइप बी को, दूसरा नाम जो है दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर, दिस इज द रीजन, क्योंकि इसका जो वैल्यूज है वी नॉट एंड आई नॉट दिस इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द रीजन, ओके। ठीक है, क्लियर हुआ सेकंड क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं। नाउ स्टेप अप क्यों कहते हैं, स्टेप अप, ठीक है। रब कर रही हूँ, हो गया लिखना सबका, ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं, सॉरी स्टेप अप क्यों कहते हैं, इसका एक इक्वेशन है, नोट्स में देख लेना थोड़ा, ठीक है। इक्वेशन क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू
Vs divided by 1 minus del. Del means duty ratio, duty cycle. This is a formula. ये इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेल का रेंज वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ. व्हाट इज द रेंज? इट इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1. दिस इज द रेंज ऑफ del, lying from 0 to 1. So let us choose del is equal to 0. For del is equal to 0, what is the value of v naught? यहाँ पे substitute करो del 0 vs. Okay. For the upper range, del is equal to 1. क्या हो रहा है? Del is equal to 1 मतलब v naught क्या हो जाएगा? 0 नहीं, infinite. इन्फानाइट हो जाएगा, हाँ नीचे जीरो होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो वी एस बाई जीरो मतलब इन्फानाइट हो जाएगा. तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि हम सप्लाई जो है वी एस दे रहे हैं, फिक्स डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, ऑन द आउटपुट साइड वी कैन गेट इधर वी एस सेम एज द सप्लाई वोल्टेज, और वी कैन गेट इन्फानाइट वैल्यूज. मतलब क्या हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है ना. सो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हम लोग का आएगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू वी एस हो रहा है. Okay, greater than is equal to vs हो रहा है. So this is the reason it is otherwise known as step up chopper. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे vs का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू vs हो रहा है. इक्वल टू भी हो सकता है, से फॉर इंस्टेंस vs इज 220 वोल्ट डीसी, तो आउटपुट वोल्टेज जो है 220 वोल्ट डीसी दे सकता है या फिर उससे ज्यादा दे सकता है. ठीक है. अच्छा, इसका और एक नाम भी है, और एक नाम भी है, वो बता देती हूँ. स्टेप अप चॉपर भी कह सकते हैं या फिर बूस्ट भी कहते हैं. बूस्ट रेगुलेटर. बूस्ट वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना ना, उसी सेंस में इसका नाम है बूस्ट रेगुलेटर. ये आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसको बूस्ट कहते हैं. और पहला वाला जो था स्टेप डाउन, उसके लिए और एक नाम है, वो है बक, BUC के, पहला वाला केस के लिए. हाँ, बक, हाँ BUC के, बक. और इसके लिए बूस्ट है. बक पहला वाला है, उसमें लिख लेना, जहाँ पे नोट कर रहे हो वहां पे लिख सकते हो. बक रेगुलेटर पहला वाला टाइप ए, एंड टाइप बी इज नोन एज बूस्ट रेगुलेटर. बक रिड्यूस करता है, बूस्ट इंक्रीज करता है. ठीक है. नाउ द थर्ड टाइप, रब कर रही हूँ, नेम नोट कर लियो. ओके, नाउ द थर्ड टाइप. ओके, थर्ड टाइप इज टाइप सी, क्योंकि ए बी हुआ था, नाउ सी, टाइप सी. और टू क्वाड्रेंट. ओके, ये इसका नाम है टाइप सी चॉपर और टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर. टू क्वाड्रेंट का टाइप ए, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. टू क्वाड्रेंट का टाइप ए, इट्स नॉट सिंपली टाइप ए, इट इज टू क्वाड्रेंट टाइप ए. ओके, सो टाइप सी और टू क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर. ठीक है. ओके, रब करिए फॉर सर्किट डायग्राम. सप्लाई वोल्टेज डीसी,
सी आई एम मार्किंग रेफरेंस डायरेक्शन फॉर आई नॉट। हाँ, आई नॉट को शो कर देना ग्रीन एरो, इट इज a रेफरेंस। रेफरेंस के साथ अगर मैच करेगा विल बी सेइंग पॉजिटिव, अगर रेफरेंस के साथ मैच नहीं करेगा तो विल बी सेइंग नेगेटिव। So here we have got two choppers and two diodes. तो कुछ लग रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप पे एंड सेकंड क्वाड्रेंट टाइप बी का कुछ कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ लग रहा है। पहले का दो डायग्राम एक बार एनालाइज करो। फर्स्ट टू डायग्राम, हैव अ लुक एंड नाउ हैव अ लुक ऑन दिस। पहला वाला डायग्राम में चॉपर एंड एफ डी, ओके। सेकेंड वाला जो टाइप बी था उसमें चॉपर एंड डी टू। नाउ द सेम थिंग इज ओवर हियर। लेट्स हैव अ कंपैरिजन। हाँ, लेट्स हैव अ कंपैरिजन। हाँ, दोनों डायग्राम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दोनों डायग्राम का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए क्या होगा, इसमें दो क्वाड्रेंट्स आएंगे। इस सिंगल सिंगल जो क्वाड्रेंट आता था वो नहीं आएगा, दो क्वाड्रेंट एक साथ आएगा, दो क्वाड्रेंट का एरिया, इसलिए इसको टू क्वाड्रेंट टाइप ए कहते हैं। सो दिस इज ये जो टाइप सी चॉपर है, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी इटसेल्फ, ठीक है। तो टाइप ए अगर देखोगे, हैव अ लुक ऑन द डायग्राम, बिकॉज डायग्राम इज नॉट विथ मी, यू कैन हैव द डायग्राम। टाइप ए चॉपर एक बार निकालो, देखो चॉपर और एफ डी है, तो वो चॉपर का नाम यहाँ पे प्रेजेंटली CH1 और FD है, ठीक है। एंड सेकेंड डायग्राम में देखो D2 एंड CH है, सो D2 इज सेम, D2 इज ओवर हियर एंड CH के जगह पे CH2 है, ओके। एंड लोड इज द सेम लोड, इंडक्टर है ना, DC सोर्स E, okay. Give the polarity for output voltage plus and minus, and I नॉट का रेफरेंस मैंने लिया है, I नॉट मीन्स लोड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे हो रहा है वर्किंग, ओके। सो okay, let us choose a condition when CH2 is on। ऐसा एक हेडिंग दे के रखो, हाँ, नंबर 1, CH is on, CH2 सॉरी, CH2 is on and नहीं बोलेंगे और बोलेंगे, CH2 is on or FD conducts। FD means freewheeling diode। CH2 is on और FD conducts, दोनों में से कोई एक। तो CH2 जब ऑन होगा और ये FD कंडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज करूंगी क्योंकि नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। रब कर रही हूँ डायग्राम सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यू कैन मेक अ फ्रेश डायग्राम। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर द केस व्हेन CH2 इज ऑन, CH2 इज ऑन। तो राइट नाउ जो मैंने डायग्राम बनाया वो CH2 ऑन के लिए है, राइट। तो VS क्या कनेक्टेड रहेगा, VS का कोई रोल नहीं है, एक एक टर्मिनल नहीं, हाँ एक, हाँ कोई काम नहीं है, एक टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है, दोनों साइड से कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये डायग्राम होगा, तो यू कैन ड्रॉ अ फ्रेश डायग्राम। दिस इज फॉर द केस व्हेन CH2 इज ऑन, ये वाला CH2 ऑन हो रहा है। तो नाउ इन दिस केस E जो है, E लोड साइड में, दैट विल एक्ट एज अ सोर्स, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, E is acting as a source। करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे ना। तो रेफरेंस के साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, आई नॉट का डायरेक्शन, हाँ मैच कर रहा है नहीं। सो हम आई नॉट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव,
नेगेटिव। ओके। अच्छा, और अगर हम एफडी लेते हैं ना, अभी एफडी वाला कंडीशन लेते हैं, ठीक है, इसको फिर से रब करियो डायग्राम। एफडी, एफडी कंडीशन। नाउ CH2 is not there, फ्री व्हीलिंग डायोड। फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये एफडी है। सो इस केस में व्हाट विल बी द डायग्राम, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। This will be the current. So I naught is again it's negative. ठीक है, नेगेटिव आ रहा है इस केस में भी। एंड व्हाट अबाउट द वी नॉट इन बोथ द केसेस? वी नॉट क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। वी नॉट क्या हो रहा है दोनों केसेस में? वी नॉट शॉर्ट हो रहा है ना, वी नॉट इज जीरो इन बोथ द केसेस, वेदर CH2 इज ऑन और FD कंडक्ट्स, इन बोथ द केसेस वी नॉट इज जीरो। ठीक है, नाउ विल बी टेकिंग नेक्स्ट केस। ये फर्स्ट केस हुआ, CH इज ऑन और FD कंडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कंक्लूजन क्या मिल रहा है? आई नॉट इज नेगेटिव, वी नॉट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड केस। सो सेकेंड केस लिखते हैं। सेकेंड केस, CH1, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया था, CH इज ऑन और है बीच में एक और है। ठीक है, CH इज ऑन और D2 कंडक्ट्स। CH1 इज ऑन और D2 कंडक्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए फिर से फ्रेश डायग्राम बनाना पड़ेगा। Now in this case, source will be connected. So I am discussing this case. CH1 is on. CH1 is on. ठीक है, पहला वाला या तो CH1 ऑन होगा या तो फिर D2 ऑन होगा। तो CH1 ऑन है। ठीक है, इस कंडीशन को लिया मैंने, CH1 इज ऑन। So CH1 ऑन के लिए दिस विल बी द डायग्राम, ड्रॉ फ्रेश डायग्राम। ओके, नाउ इन दिस केस करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स टू द लोड, लाइक दिस इट इज फ्लोइंग। So it is flowing in this direction. तो लोड करंट का डायरेक्शन वेदर इट इज मैचिंग, इट इज मैचिंग ना इन दिस केस। हाँ, सो विल बी, हाँ पॉजिटिव, तो हम लोग आई नॉट को पॉजिटिव लेंगे। राइट डाउन आई नॉट पॉजिटिव। अच्छा, इस केस में KVL लगाओ, तो KVL, पुट KVL इन दिस सर्किट एंड टेल मी CH1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो जीरो अज्यूम करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन KVL, पॉजिटिव टू नेगेटिव VS,
सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड व्हाट अबाउट योर वी नॉट, वी नॉट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी एस मेरा क्या आ रहा है, वी एस सॉरी वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस आ रहा है इस केस में फाइनली, राइट। सो आई नॉट इज पॉजिटिव एंड वी नॉट इज वी एस। ठीक है, दिस इज फॉर द केस व्हेन सी एच वन इज ऑन। ये और ऑप्शन है, सी एच वन ऑन हो सकता है या फिर डी टू कंडक्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर डी टू, व्हेन द डी टू कंडक्ट्स। once again you have to make a fresh diagram, हाँ। रब करियो डायग्राम को। D2, so here is your D2। ठीक है, तो D2 कब कंडक्ट करेगा, जब योर आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज मोर देन VS। ये कब पॉसिबल है, ये वाला केस D2। ये हम लोग का CH1 खत्म हो गया, हाँ CH1 हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हेन D2 इज और D2 कंडक्ट्स। तो D2 कब कंडक्ट करेगा, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर D2 टू कंडक्ट, या V नॉट शुड बी ग्रेटर देन योर VS, तभी ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा। ठीक है, अगर V नॉट ग्रेटर देन VS नहीं होगा तो D2 को फॉरवर्ड बाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है, V नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन VS। तो इस केस में तुम्हारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, मीन्स लोड इज एक्टिंग एज अ सोर्स एंड सोर्स इज एक्टिंग एज अ लोड। ओके, so current कैसे flow हो रहा है, ऐसे it is flowing in this direction। so see the arrow, arrow is matching or not matching, not matching, so it is negative। अच्छा, इस केस में भी अगर KVL डालते हैं, सेम KVL you will be getting, so V naught is equal to VS हो रहा है, V naught is equal to VS, same KVL will come as we did for the previous case। CH2 is on के लिए, CH1 is on के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आई नॉट नेगेटिव आ रहा है एंड वी नॉट इज इक्वल टू वी एस आ रहा है। ठीक है, नाउ द फाइनल कंक्लूजन, दिस इज द टोटल वर्किंग ऑफ द सर्किट। नाउ द फाइनल कंक्लूजन, सो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या है, अच्छा पूरा जो हम लोग स्टडी किए उसमें से एक चीज क्लियर होके आ रहा है, आई नॉट कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, और वी नॉट क्या हो रहा है, आई नॉट कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। इज इट क्लियर, फाइनल कंक्लूजन ऑफ द थिंग वर्किंग। एंड वी नॉट क्या हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है वी नॉट, हेलो, नहीं, वी नॉट हमेशा पॉजिटिव एंड आई नॉट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, सो वी नॉट जो है यहाँ पे फाइनल जो कंक्लूजन है, वी नॉट जो है हमेशा पॉजिटिव इन वट एवर बी द केस, हाँ हमेशा पॉजिटिव, एंड आई नॉट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आई नॉट का दो वैल्यूज हो सकता है, या तो फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नाउ लेट अस ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ quadrants and let us take this as I naught positive axis and this is your I naught negative axis। okay, x axis and y axis let us choose v naught। so अगर इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं, so we will be getting v naught हमेशा पॉजिटिव होगा या तो फिर जीरो होगा। ओके, या तो फिर जीरो होगा या तो फिर कोई एक फिक्स वैल्यू होगा। एंड व्हाट अबाउट योर आई नॉट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, आई नॉट कैन बी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली जो है वो इस रेंज में ही आ रहा है, मतलब दोनों क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड।
फर्स्ट प्लस सेकंड क्यों आ रहा है, एनी आइडिया? बिकॉज हियर वी फॉर दिस टाइप सी चॉपर वी टुक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए दोनों चीज मिल के आ रहा है, ठीक है, दोनों चीज मिल के आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो इसीलिए इसको हम कहते हैं टू क्वाड्रेंट, दिस इज द रीजन इट इज नोन एज टू क्वाड्रेंट टाइप, टू क्वाड्रेंट का टाइप है चॉपर। ओके, टू क्वाड्रेंट टाइप पे चॉपर, दोनों क्वाड्रेंट आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट भी आ रहा है, यू कैन सी फर्स्ट भी आ रहा है एंड सेकंड भी आ रहा है, राइट? क्लियर ना? नॉन द फोर्थ वन, समझ में आ रहा है वर्किंग? ओके, नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ वन, फोर्थ करके छुट्टी कर दूंगी हाँ, क्योंकि फिफ्थ बहुत बड़ा है, उसको बताने में टाइम लगेगा, फिफ्थ कल करेंगे। ये जो टाइप्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी तो फोर्थ आएगा, फिफ्थ वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, रिपीट क्वेश्चन। ओके, नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ वन इज ए बी सी हो गया था, नाउ डी, टाइप डी चॉपर और टू क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट का टाइप ए हुआ था, नाउ टू क्वाड्रेंट का टाइप बी। ओके, सो टाइप डी चॉपर और टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर, टाइप डी और टू क्वाड्रेंट टाइप बी। टू पहला वाला था, जो थर्ड वाला था टू क्वाड्रेंट टाइप ए था, ठीक है, और ये वाला है टू क्वाड्रेंट टाइप बी, टू क्वाड्रेंट का टाइप बी, टू क्वाड्रेंट का टाइप ए, राइट? ठीक है, मैं रब कर रही हूँ नाम। ओके, सर्किट डायग्राम, तो ये भी वैसा ही है थर्ड वाले के जैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, बट कॉम्बिनेशन ऐसा लिया जाएगा कि हम लोग को टाइप डी मिलेगा, ठीक है। सो सर्किट डायग्राम, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, so two choppers are there, you can see in the diagram, two choppers and two diodes, ठीक है। एफ डी की जगह पे मैंने डी वन लिख दिया है, दिस इज द ओनली डिफरेंस ओवर हियर। सो दिस डायग्राम इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, मतलब फर्स्ट फर्स्ट टू जो टाइप हम लोग डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, पहला दोनों, ठीक है। तो मैंने चेंज किया क्या, यहाँ पे डी वन के जगह पे एफ डी ले लिया, instead of d1 I wrote f sorry, in place of fd I wrote d1, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस आई डिड, एंड लोड जो है वो मैंने बॉक्स में दिखा दिया, लोड, ठीक है। सो लोड का पोलैरिटी दिखा देना, एंड वी नॉट इज मेजर्ड across load, v naught is also dc, vs is also dc, but v naught is a variable dc, ठीक है, एंड दिस इज द सप्लाई। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे, तो लेट अस चूज फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट सिचुएशन व्हेन बोथ CH1 एंड CH2 आर ऑन, ठीक है। डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं,
circuit diagram को. So first case when both CH1 and CH2 are on means turned on. ठीक है, तो डायग्राम में रब करूंगी, चेंजेस होगा. डायग्राम हो गया? हेलो, डायग्राम हो गया? हाँ, ओके. सो अब ये D2 का कोई काम नहीं है, D1 का भी कोई काम नहीं है. Okay, so this will be the circuit, right? When both CH1 and CH2 are on. So remove D1 and D2 from your circuit. Removing D1 D2 from the circuit means D1 and D2 are inactive. No current will be passing through D1 and D2. Okay. So in this situation, now if you put KVL, Vs is from negative to positive. Let us put KVL. Huh? Negative to positive Vs, so positive. V naught is positive to negative, so minus V naught is equal to 0. So what is our V naught value in this case? V naught is equal to Vs. Fine. V naught is equal to Vs, sorry. And let us give current. Vs is acting as a source in this. हाँ. अच्छा, करंट मैंने मेन रेफरेंस नहीं ड्रॉ किया था ना, मेन डायग्राम में छूट गया था. इन योर मेन डायग्राम यू जस्ट शो, हाँ, this arrow, look at the green line, this shows I naught. In your main diagram you also show green one. So रेफरेंस के साथ क्या येलो वाला मैच कर रहा है? Vs is acting as a source. हाँ, सोर्स Vs है, लोड जो है वो लोड है. So it is matching. So we can say I naught is positive. I naught is positive and V naught is equal to Vs, right? So V naught is equal to Vs and I naught is equal to positive, right? यहाँ पे दोनों को टर्न ऑन होना पड़ेगा एक साथ. CH1 CH2 दोनों स्विचिंग डिवाइस को एक साथ टर्न ऑन होना है. ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, राइट? सो दिस विल बी द सर्किट समझ में आया सबको? ओके, नाउ द सेकेंड केस. रब करियो. सेकेंड केस लिख सकते हो, व्हेन बोथ CH1 एंड CH2 आर ऑफ. CH1 CH2 जो ऑन था वो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, CH1 and CH2 are off and diodes D1 and D2. D1 and D2 conducts. सो इसका मतलब क्या है? CH1 CH2 जो फर्स्ट केस में ऑन था अब वो ऑफ हो जाएगा, उसके जगह पे D1 D2 कंडक्ट करेंगे. ठीक है, सो वंस अगेन यू हैव टू ड्रॉ अनदर डायग्राम क्योंकि ये डायग्राम फॉलो नहीं होगा. ठीक है, तो ये मैं चेंज कर रही हूँ डायग्राम में. CH1 नहीं रहेगा, D1 रहेगा और D2 रहेगा, राइट? ओके, मेक अ फ्रेश डायग्राम. D1 कहाँ कनेक्टेड था? D1 यहाँ, जैसा डायग्राम है वैसे ही बना रही हूँ. ठीक है, D1 and D2 was connected over here. D2. तो ये कब पॉसिबल होगा D1 एंड D2 टर्न ऑन होना? एनी आइडिया? कब पॉसिबल होगा ऐसा? हेलो, हाँ, D1 D2 कब ऐसे टर्न ऑन होगा? कब कंडक्ट करेगा D1 D2?
ये तभी पॉसिबल है जब लोड इज एक्टिंग एज अ सोर्स, ठीक है, तभी D1 D2 फॉरवर्ड बेस्ड होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब CH1 CH2 ऑन हो रहा है उस केस में लोड में ऑब्वियसली इंडक्टर है, कुछ एक है यहाँ पे जो स्टोर कर रहा है एनर्जी। अब जब CH1 CH2 ऑफ हो रहा है तो वो स्टोर्ड एनर्जी जो है उसका जो V0 हो रहा है टोटल, वो Vs से ग्रेटर हो रहा है, तभी D1 D2 फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है, तभी D1 D2 कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। सो इन दिस केस लोड इज एक्टिंग एज अ सोर्स, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एरो डायरेक्शंस अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या समझ में आ रहा है? आई नॉट इज, ग्रीन के साथ कंपेयर करो, आई नॉट इज पॉजिटिव, सो आई नॉट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज मैचिंग। अच्छा, केवीएल लगाओ, KVL, Vs is negative to positive, so Vs is positive and V0 जो है हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, हाँ ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एरो देने से कंफ्यूजन हो जाएगा, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अरे हम लोग इस पाथ में मूव कर रहे हैं फॉर KVL, राइट। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स हियर V0 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। KVL समझ में आ रहा है ना? तो V0 क्या हो जाएगा? माइनस Vs, V0 will be equal to minus Vs. This is for the second case when both CH1 and CH2 are turned off and diodes D1 and D2 are conducting, ठीक है। So now the final conclusion, ये हो गया पूरा वर्किंग, मतलब पहला वाला केस होगा, सेकंड केस होगा, फिर सेकंड केस के बाद फिर पहला केस, फिर सेकंड केस, ऐसे करके साइकिल होगा वर्किंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फाइनल जिस्ट ऑफ द थिंग, ओके। हाँ, आई नॉट दोनों, आई नॉट पॉजिटिव, आई नॉट दोनों में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, ठीक बोला ना मैंने, आई नॉट पॉजिटिव हो रहा है, पहला वाला केस में भी पॉजिटिव था। एंड वी नॉट क्या हो रहा है? वी नॉट, हाँ, वी नॉट कभी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, और कभी नेगेटिव हो रहा है, दिस इज फाइनल थिंग, ओके। ओके, सो फाइनली वी कैन से कि वी नॉट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी नॉट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट आई नॉट दोनों केसेस में हम लोगों ने देखा है ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। सो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, एक्स एक्सिस जैसे कोई चेंज नहीं हो रहा है, आई नॉट एक्स एक्सिस है, ओके, वी नॉट जो है वाई एक्सिस है, वी नॉट दोनों हो रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस जाएगा। सो इफ यू विल ड्रॉ तो वी नॉट क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है ना। सो कैसा आएगा, ये दो क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा, बट ये फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाला क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। बट ये दोनों क्वाड्रेंट को कवर अप कर रहा है, दिस इज कवरिंग अप बोथ द टू क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट इज, हाँ, टू क्वाड्रेंट टाइप बी, टू क्वाड्रेंट का टाइप बी, टू क्वाड्रेंट टाइप बी, क्योंकि इसमें दोनों क्वाड्रेंट कवर अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोड़ती हूँ, 5 बज गए, 5 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल फिर से वही 3:30 बजे, एंड वी विल बी कवरिंग अप लास्ट वाला फिफ्थ टाइप, ठीक है, दैट इज टाइप पी। टाइप पी बहुत बड़ा है, अभी खत्म नहीं होगा, हाँ कल डिस्कस करते हैं, ओके। ओके, स्टडी कर लेना, कुछ अगर डाउट होगा यू कैन आस्क, हाँ, ओके, बाय बाय।